build this event. You know, the world is full of diamond and gem, and some of them are here today to build this event more successful. With this note, I would like to give my heartiest welcome to Mr. Angad Talwar sir, founder of Cos IQ Intelligent Skincare. He is a marketing professional and experienced in market research, business development, and marketing strategy, and work with Cos IQ, Para.com, and Hat.org. I also provide my grateful welcome to Mr. Aditya Veer Sir, Assistant Director of Training and Placement Cell of Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar. Our club mentors, Dr. Thanda Ma'am and Dr. Shadul Singh Sir, our students or club members and all the students who are joining us and make this event more successful and effective. I know that you all are very excited for this event. So without wasting time, let's invite Mr. Aditya V. Sir, Assistant Director of Training and Placement Cell, to formally invite Mr. Angad Sir into this webinar. Sir, please. Thank you, Kirti. Warm welcome to our today's keynote speaker, Mr. Angad Talwar. Mr. Talwar is a Delhi-based entrepreneur, and he has done a Bachelor of Science in Electrical Engineering from Southern Methodist University, Texas. And he is a co-founder of Cos IQ, which is an intelligent skincare brand creating a revolution in the Indian skincare industry. So recently, he has been into the Shark Tank also, if most of the students have seen the episode. So he raised around 50 lakhs from Shark Tank, in which Vinita ji and I think Anupam ji has participated. They have joined the hands with the Cos IQ. So a very warm welcome to all the students present here, and to our coordinators of the program, Dr. Shardul Singh ji from Assistant Professor, Electronics Department, and Dr. Komal Dhanda, Assistant Professor from Haryana School of Business. So today we are here to listen to one of the big and great entrepreneur, Mr. Angad Talwar, and he will be sharing a lot of information about his journey, how he started, what all difficulties he has faced, and how to overcome these difficulties. So this is the prime motive of this program, to give you information and about how you feel when you being an entrepreneur, what all difficulties you face and how you can overcome these difficulties. So again, let's start the program, and I would like to call Mr. Angad Talwar to start the program. Talwar. Thank you, Kirti. Thank you, Dr. Aditya. Thank you for welcoming me. Thank you for hosting me here. And it's lovely talking to all the students and you guys. Or I feel honored that I am able to share my 2 cents to you guys, and probably थोड़ा सा बहुत छोटा सा contribution कर सकता हूँ in your journeys to if you want to get into entrepreneurship. अगर एक क्वेश्चन भी एक एरिया भी थोड़ा सा क्लैरिटी दे सकूं तो आई थिंक दिस विल बी टाइम वेल स्पेंट फॉर मी. So I'll tell you briefly about Cos IQ and how it has been. So I graduated in 2009 and I've been doing various businesses तब से. अरे कोई बोला है, कोई आ गया. So I've been into business since then. Cos IQ we started a year ago. Officially launched on Amazon June last year. And हम लोग Shark Tank पे थे. We got a great opportunity to present our brand to the world. And हमको सिखा दिया. आप इनको, अरे यार मेरे को लगता है मैं आप लोगों से आपने से ही बात करता हूँ तो ज्यादा मजा है. हाँ यार थोड़ा बहुत सीख लो, कुछ थोड़ी सी समझ है. बाकी नहीं सीखना तो जा सकते हो.
तो हाँ, हम लोग ने स्टार्ट करा जून में अमेज़न पे बेचना शुरू करा और तब से एक्सक्यूज मी हम लोग सर, फिर। हाँ जी, अंगद सर एक जी क्वेश्चन बोलिए। पूछो। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। बोलो वंश। सर वो अनुपम सर ने आपके चेक के पीछे क्या लिखा था? बहुत क्यूरियोसिटी हुई थी वो देखने के बाद। हाँ, हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग पिंक कलर की है और वो काफी इम्प्रेस थे। एक डिस्कशन भी हुआ था कि पिंक खाली फीमेल ओरिएंटेड कलर है या मेन भी पहन सकते हैं, और मेन लोग को भी पिंक पसंद है, तो इसलिए उन्होंने लिखा था लेट्स पेंट द टाउन पिंक। हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट का कलर पिंक है इसलिए। ओके, थैंक यू सर। तो हाँ, जर्नी काफी मजेदार रही है अभी तक तो कॉस IQ के लिए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर एबल टू ब्रिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। हम लोग मॉलिक्यूलर स्किन केयर ब्रांड है, तो हम लोग स्किन केयर बनाते हैं जो आपके जो एक्टिव बेस्ड है। तो हम लोग कोई ऐसा क्लेम नहीं करते कि नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, और मतलब नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, क्योंकि हमारे हिसाब से सब कुछ नेचुरल है। केमिकल फ्री क्लेम्स होते हैं जो, तो मतलब आप लोग पढ़ रहे होंगे कि पानी भी केमिकल होता है, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड, नथिंग केमिकल फ्री, नथिंग नेचुरल। सब कुछ नेचुरल है, तो वो सब कुछ आप अपने मुंह पे नहीं रखते। तो हमारी आइडियोलॉजी है कि जो मॉलिक्यूल जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो हम आपको आपकी स्किन के लिए प्रोवाइड करते हैं, जो टेस्टेड है लैब में, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जैसे अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो हम विटामिन सी देते हैं, और क्या परसेंटेज में विटामिन सी है, किस फॉर्म में विटामिन सी है, कौन सा डेरिवेटिव है, वो सारी क्लैरिटी के साथ देते हैं। तो दैट इज द आइडियोलॉजी। और आप लोग से जरूर आई मीन आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस यू गाइस हैव। सर माय क्वेश्चन, हाँ जी। जब आप पिच करने इतने बड़े स्टेज पे गए थे तो नर्वसनेस तो हुई होगी, फिर भी मतलब यकीन था कि मतलब कोई शार्क हमारे पास आएगा, या फिर था कि मतलब कोई तो आएगा ही? जी, बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी। हम लोग उस टाइम पे सिर्फ 4 महीने पुरानी कंपनी थे, तो वी वर प्रॉब्ली द यंगेस्ट कंपनी ऑन शार्क टैंक एट द टाइम ऑफ पिचिंग। तो हम लोग काफी नर्वस थे कि क्या होगा, कैसे होगा, बट हाँ, हमें सिर्फ एक चीज पे भरोसा था, हमारे प्रोडक्ट। हमें पता था कि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, एंड ठीक है, मार्केटिंग थोड़ा सा वीक हो सकता है, हम लोग नई कंपनी है, ब्रांडिंग थोड़ा वीक हो सकता है, बट हाँ, प्रोडक्ट्स अच्छे थे, एंड दैट वी वर 100% कॉन्फिडेंट ऑन। और उसी से शायद एक मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, कुछ भी करेंगे तो प्रोडक्ट बोलेगा ही हमारा। उस बेसिस पे हम लोग गए। बहुत नर्वस थे अंदर, मतलब आपने वो पिच पे भी देखा होगा, मैं तो हाथ भी कांप रहे थे मेरे तो थैंक यू सर। मोस्ट। सो या, आई वुड प्रेफर हम लोग ये इंटरैक्टिव रखें, जो कुछ भी पूछना चाहता है, आई बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो, इंस्टेड ऑफ मी गिविंग अ स्पीच कि मैंने ये करा वो करा। अभी काफी कुछ करा है, काफी कुछ करना है, बट आई वुड रादर वांट यू गाइस टू आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव। May I, sir, excuse me. हाँ जी, बोलिए आकाश। Yes, sir, I would like to know, sir, what type of challenges you have faced at your starting phase? आकाश, आपकी ना आवाज थोड़ा सा गूंज रही है, तो इसलिए। Sir, I need to know, sir, what challenges you have to face at your starting phase. देखो, स्टार्ट करने के लिए ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, व्हाट बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होते हैं। हम मेरे पर्सनली वी स्टार्टेड अ न्यू फैमिली, आई जस्ट गॉट मैरिड 2 years ago। तो एक फाइनेंशियल चैलेंज भी होता है कि यू आर लीविंग योर, प्रॉब्ली पीपल आर लीविंग देयर जॉब्स टू स्टार्ट अप, तो वो एक
हर महीने का जो एक सैलरी होता है, यू डोंट गेट दैट, यू डोंट मेक दैट काइंड ऑफ मनी इनिशियली। वो बाद में बहुत रोजी लगता है कि हाँ ये किसी ने बोट बना लिया या विनीता जी ने शुगर बना लिया, बहुत रोजी लगता है, बट इनिशियली दे हैव एवरीबॉडी हैज टू स्ट्रगल। एंड और एक सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, बिकॉज इट इज सच अ डिफिकल्ट वर्ल्ड टू कम्पीट इन। आपको हमेशा लगेगा आपका कंपटीशन बहुत बड़ा है और आप यू आर एट जीरो। तो वो एक माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है कि यू कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड। जो अभी 10 पे है, जो अभी 100 पे है, उन्होंने भी कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट करा। Okay, sir. Then how to overcome to all that obstacles? परसिस्टेंट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। सबसे ज्यादा जरूरत है परसिस्टेंट होने की। रोज नया एक एंटरप्रेन्योरशिप में मैं हमेशा, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्किल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे ना भी हो तो भी चल जाता है, बट एक जो एसेंशियल स्किल होता है दैट इज फायर फाइटिंग। कि प्रॉब्लम आएगी तो जो एक फायर फाइटर होता है ना, वो जैसे लड़ता है ना, आग लगती है तो आग बुझाने जाता है, वो स्किल होना बहुत जरूरी है। बिकॉज व्हेन यू स्टार्टिंग अप एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग इनिशियल फेजेस में, हर रोज एक नया चैलेंज आता है, एक नई प्रॉब्लम आती है। तो यू हैव टू हैव दैट परसिस्टेंट कि हाँ आज ये चैलेंज आया, इसको सॉल्व करेंगे और आगे। इफ यू गेट बॉक्ड डाउन कि अच्छा ये चैलेंज आ गया, अब क्या करें, तो यू इट इज बेटर नॉट टू स्टार्ट। रोज नए चैलेंजेस होते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, रोज रोज एक नई चीज आएगी। कभी फाइनेंशियल चैलेंज आएगा, कभी सप्लाई चेन आएगी, कभी प्रोडक्ट खराब बनेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप यू डूइंग। तो यू हैव टू गेट अप एवरी डे, फेस द चैलेंजेस, और परसिस्टेंट होना बहुत, दैट आई थिंक इज सर हमें अपने माइंड में कस्टमर का फीडबैक कितने ध्यान से देखना चाहिए कि हमें प्रॉपर कस्टमर के फीडबैक पे ही फोकस करना चाहिए, या फिर हमें खुद का भी इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए कि हाँ ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती। आपको एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग रोज सोचते हैं कि कितना कस्टमर पे रिलाई करें और कितना ना करें, बट देखिए सबसे पहली चीज, आप जैसे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो तभी सक्सेसफुल है आप जितनी मर्जी अच्छी मार्केटिंग कर लो, घर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना, जब तक आपका कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे फॉर इट, इट इज वर्थ नथिंग। तो कस्टमर का सुनना बहुत 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 जरूरी है। बट इन द लास्ट 6 to 12 months आई हैव रियलाइज कस्टमर का सुनना बहुत जरूरी है एज कलेक्टिवली। अगर हम हर एक कस्टमर की हर एक क्वेरी सॉल्व कर लेंगे, तो हम कभी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। जैसे हम लोग एक सनस्क्रीन बनाते हैं, वी ट्राई टू मेक द बेस्ट सनस्क्रीन, बट सबका स्किन टाइप अलग है। और अगर एक कस्टमर आके कहता है मेरे को तो बहुत लाइट सनस्क्रीन चाहिए, एक कहता है मेरे को हेवी चाहिए, एक कहता है मेरे को क्रीमी सनस्क्रीन चाहिए, एक कहता है मेरे को रनी टेक्सचर चाहिए, किसी की स्किन बहुत ऑयली है, किसी की बहुत ड्राई है। तो मैं हर कस्टमर की सुनता हूँ, बट अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाहूँ जो वो ये सारे कस्टमर को एड्रेस कर लेगा, तो मैं कभी प्रोडक्ट नहीं बना पाऊँ। तो हाँ, आपको कस्टमर को सुनना बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज आपको कस्टमर को कम्युनिकेट करना भी बहुत जरूरी है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है। तो यू नीड टू बी कनेक्टेड टू द कस्टमर डेफिनेटली, स्पेशली फॉर अ D2C ब्रांड लाइक दिस। सर ये भी सुना है कि जब आप कोई ब्रांड स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में इतने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रखने चाहिए। आपका क्या मानना है कि प्रोडक्ट कितने रखें स्टार्ट में? मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रांड बनाए जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे, और इसीलिए वो ब्रांड नहीं चले, बिकॉज आपका फोकस नहीं हो। तो
ये बहुत सही एडवाइस है। अनुपम सर ने भी हमें ये एडवाइस दी जब हम लोग भी गए थे, तो वी सेड वी हैड 8 प्रोडक्ट्स एट दैट टाइम। तो वी सेड 8 क्यों है, 2 प्रोडक्ट से क्यों नहीं बना सकते। हालांकि वी आर इन अ कैटेगरी जहाँ पे यू नीड मोर प्रोडक्ट्स बिकॉज स्किन केयर है, बट हाँ, जितना कम प्रोडक्ट से आप मार्केट में कस्टमर फीडबैक ले सको, इफ यू कैन स्टार्ट विद 1 प्रोडक्ट, with 2 products and get it out in the market instead of starting with 15 products, so you are able to build it better in the longer run. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। सर मेरा नाम अंकित है सर। मैंने भी आपकी शार्क टैंक वाली पिच देखी थी, मुझे काफी सही लगी। आपने जब बोला कि कोर्स IQ इज लाइक अ बेबी फॉर अस, तो काफी सही लगा। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है आपसे। तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि एज यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ वेरी नाइस एंड गुड कॉलेज, आपकी स्टार्टअप जर्नी में वो कैसे हेल्प कर पा रहा था? अगर जैसे मैं अगर किसी बहुत ही शाइनिंग ब्राइट कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ, या फिर मोस्ट ऑफ द अगर मैं जो देखता हूँ यूनिकॉर्न्स इन सब स्टार्टअप्स को, तो इन सभी के फाउंडर्स या तो IIT से आ रहे हैं, IIM से आ रहे हैं। इवन विनीता मैम भी खुद IIM ग्रेजुएटेड है। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, आप ठीक बोल रहे हो। एक तो सारे लोग मेरे को अंगद बुलाओ, सर का अभी सर नहीं बना, मैं अंगद बुलाओ, दैट इज गुड। और बाकी आप जो कह रहे हो वो सोच पुरानी हो गई शायद, आई थिंक, कि आपको IIT IIM से ही होना पड़ेगा। अगर आप अभी शार्क टैंक भी देखोगे तो बहुत परसेंटेज लोग हैं, अच्छी परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर नॉट फ्रॉम Tier 1 कॉलेजेस, एलीट कॉलेजेस। बहुत सारे पिक्चर्स थे एंड दे गॉट फंडिंग। और अभी इन द मार्केट ऑल्सो, इन द वेंचर कैपिटलिस्ट है जो, और जो इन्वेस्टर्स है, उनमें भी ये आइडिया चेंज हो रहा है। और Tier 2 Tier 3 टाउन्स में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आप जो कह रहे हो वो एप्लीकेबल था आज से 2-3-4 साल पहले, बट अब वो बहुत चेंज हो गया है। और ऑनेस्टली आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज में आपको एक्सपोजर मिलता है, IIT में बहुत ज्यादा मिलता है, आई एग्री। बट ऐसा नहीं है कि आप IIT में नहीं गए तो आप कुछ बड़ा नहीं बना सकते। उल्टा मेरे को लगता है आज हमारे अभी इंडिया में Tier 2 Tier 3 टाउन्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास एक ना भूख है कुछ करने की, जो एलिट कॉलेजेस में भी है, पर Tier 2 Tier 3 टाउन्स और दूसरे कॉलेजेस में भी डेवलप हो रही है। एंड आई थिंक द टाइम विल चेंज इन द नेक्स्ट 5 years. ओके, थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जैसे जब आपने प्रॉब्लम को फाइंड कैसे एक्चुअली करा कि यहाँ मतलब पीपल नीड कोर्स IQ, ये आपको पता कैसे चला? और सर जब आपने जब प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया, तो क्या आपने सर एक शॉर्ट सर्वे रन करके देखा कि एक्चुअल में मार्केट में इसकी नीड है भी या नहीं? सर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप चला रहे हैं, अगर मैं किसी और फील्ड में अगर स्टार्टअप करना चाहूँ, तो क्या मुझे उस टाइम पे भी सर्वे करके देखना चाहिए लोगों का कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर भी है रही है नहीं, या सिर्फ मेरे ही दिमाग में एग्जिस्ट कर रही है? बिल्कुल करना चाहिए। मतलब एक वन वर्ड आंसर, बिल्कुल। अगर आप कस्टमर को नहीं देख रहे, आप घर में बहुत अच्छी चीज सोच सकते हैं कि हाँ ये बनाया हमने, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये सारी दुनिया को चाहिए होगा। और आप सडनली लेके जाते हैं तो वो पता चलता है नहीं, ये तो किसी को नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी एक स्किन केयर मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़े थे, और Kanika started working there couple of years ago. तो she realized कि गैप है मार्केट में, और लोग जो बना रहे हैं और जो लेवल पे लिख रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। और मार्केट में एक एजुकेशन की कमी है कि क्या हो रहा है, क्या क्या लगाना चाहिए मेरे को फेस पे, मेरे को सनस्क्रीन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, रीअप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विटामिन C लगाने से क्या होता है, ये वाला नॉलेज का गैप है और प्रोडक्ट्स का गैप। तो
कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो नेचुरल ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत कुछ बेच रहे हैं, मतलब नींबू दिखा के विटामिन सी बेच रहे हैं। तो विटामिन सी चाहिए अगर आपकी स्किन को, तो विटामिन सी चाहिए, नींबू नहीं चाहिए। नींबू में और बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी स्किन के लिए उल्टा खराब है। सो वो एक नॉलेज बेस का वो गैप नजर आया मार्केट में। उसके बाद आप जो कह रहे हैं उसको एक ना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, एमवीपी कहते हैं। तो एमवीपी करना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग फुल ऑन इनटू द मार्केट। एमवीपी का मतलब होता है कि आपने एक प्रोडक्ट सोचा, बनाया, आपको लगा बहुत अच्छा है, तो आप वो प्रोडक्ट टेस्ट करो, और आपके जो कस्टमर्स से आपको उस पॉइंट पे, हाँ आपके लिए कस्टमर भगवान है, आपको जानना जरूरी है कि अच्छा मैंने ये सनस्क्रीन बनाया है, मैं इसको 500 रुपए का बेचूंगा, तो विल यू पे 500 रुपीज फॉर दिस? अगर वो कस्टमर कहता है कि मैं इसके तो सिर्फ 200 रुपए दूंगा और आप 500 रुपए का बना के मार्केट में उतार दोगे, तो इट विल नॉट वर्क। या कस्टमर कहता है मेरे को तो सनस्क्रीन चाहिए ही नहीं, मैं तो आई डोंट नो, मैं यूज नहीं करता सनस्क्रीन, हालांकि सनस्क्रीन में अप्लाई नहीं होता, बट आप ऐसी चीज बना रहे हैं। शायद शार्क टैंक में ऐसे प्रोडक्ट्स भी आए थे जो मतलब वो इन्वेंटर या एंटरप्रेन्योर सोच रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया मैंने, और वो प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा होता है, बट उसकी मार्केटिंग नहीं होती। तो वो स्टडी करना बहुत जरूरी है, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है, और उसको टेस्ट करना मार्केट में। वंस यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट, देन यू कैन गो फुल ऑन एंड लॉन्च इट इन द मार्केट, लॉन्च इट विद द ब्रांड। ओके सर। सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा हाँ हाँ, कि पूछो बिल्कुल। सर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हो, बट आप जब मार्केट में आए हो आपसे पहले बहुत बड़े बड़े जाइंट्स ऑलरेडी हैं। सर मैं भी अपने एज इन फॉर एग्जांपल मैं एक कम्युनिटी स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने कॉलेज में, बट ऑलरेडी काफी सारी कम्युनिटीज जो मेरे से बहुत बड़ी है ऑलरेडी। तो फिर आपने उस चीज को किस तरह इनटेक करा, उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन लोगों को कैसे देखा आपने? आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप वो कम्युनिटी क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपकी कम्युनिटी में ऐसा क्या है जो बाकी कम्युनिटी में नहीं मिल रहा आपको। अगेन प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो स्किन केयर में हम कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, बट अगर डीपली हमारे प्रोडक्ट देखो, हमारे ब्रांड को देखो, तो वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। स्किन केयर था, बहुत बड़े ब्रांड्स थे, उसके बाद न्यू एज इंडियन ब्रांड भी थे, और फिर भी हम अपनी जगह बना रहे हैं बिकॉज वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बहुत बड़े ब्रांड्स थे जो अपने प्रोडक्ट में क्या डाल रहे हैं, वो कहते थे ये ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश लो, इसके अंदर क्या है हम नहीं बताएंगे, वो पीछे कहीं छुपा हुआ है, ये आपकी स्किन पे क्यों काम करता है हम नहीं बताएंगे। तो हम लोग ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसके अंदर ये ऑयली स्किन है तो इसके अंदर AHA BHA है। AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, वो आपकी स्किन को ये काम करता है। तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि कस्टमर समझ पा रहा है कि हाँ इसमें ये प्रोडक्ट है, ये इसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये काम करता है, तभी ये मेरी ऑयली स्किन पे कुछ इफेक्ट देगा। उसके बाद हम डिफरेंट परसेंटेजेस दे रहे हैं। तो अगर ऑयली स्किन का कोई प्रोडक्ट आता है या मार्केट में आता है तो कहता है ये ऑयली स्किन है ले लो। अब आपकी स्किन कितनी ऑयली है, आप बिगिनर हो, आप 20 साल के हो या आप 70 साल के हो, तो वी हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स इन आवर प्रोडक्ट। हमारा नाइसिनामाइड सीरम है, वो 5% में भी आता है, 10% में भी आता है, 20% में भी आता है। तो आप बिगिनर हो, आपने जिंदगी में कभी नाइसिनामाइड फेस पे नहीं लगाया। नाइसिनामाइड विटामिन B3 होता है, तो अगर वो कभी नहीं लगाया तो यू हैव एन ऑप्शन टू स्टार्ट विद 5%। अलग ब्रांड का नाइसिनामाइड आते हैं, बट वो कहते हैं नाइसिनामाइड 10% लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। सो यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप कम्युनिटी बनाना चाह रहे हो तो आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि आपकी कम्युनिटी में ऐसा क्या होगा जो बाकी कम्युनिटीज में नहीं है। Why would put yourself as a customer, why would I want to use your community instead of all the other community? और once you are able to answer that question, बाकी चीजें अपने आप लाइन पे है। सर वन लास्ट क्वेश्चन बस। सर आपके लिए चीजें जब आप स्टार्ट कर रहे थे और अब आपको जब फंडिंग मिल चुकी है तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया होगा हर एक चीज में, लाइक एकदम
काफी ज्यादा चेंज हुआ है या फिर मतलब किस तरह से चीजें आप उस टाइम के कंपैरिजन में और इस टाइम के मतलब? देखो, थोड़ी सी चीजें, ऑब्वियसली यू नीड फंड्स, तो फंड्स एंड वी आर आल्सो गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अनुपम एंड विनीता, तो चीजें आसान हो जाती है। बट एडिशनल वो किसका डायलॉग था, आई डोंट नो, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पाइडरमैन। बढ़ जाती है, स्पाइडरमैन का, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज यू आर डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स जो पीपल आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट फ्रॉम इट, you have to deliver the best product in the market and you have money on your money backing you up, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है, पर बहुत सारी चीजों का एक्सेस भी खुल जाता है। हम लोग मार्केटिंग में अगर हम 1 रुपया खर्च करते तो आज हम 5 रुपए खर्चने की हिम्मत रखते हैं, हालांकि अभी नहीं कर रहे, बट वी हैव दैट बैकिंग। और हम लोग अगर 100 लोग तक पहुंच रहे थे, आज हम 1000 लोग तक पहुंच सकते हैं। तो हाँ, you get more opportunities, but you have to be more responsible. सर इससे पहले अभी आप दोनों बिजनेस संभाल रहे थे, अभी ऊपर अनुपम सर और विनीता मैम भी है, तो किस तरह की आपको उनसे हेल्प मिल रही है और क्या चेंज आपको लग रहा है, क्या आपकी कंपनी को क्या बेनिफिट्स हुए अब तक? देखो, बहुत सारी हेल्प तो है, बहुत सारा हेल्प है, हालांकि हमारी इंटरेक्शन बहुत कम है उनसे, बट अनुपम और विनीता दोनों बहुत बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं, तो अगर मेरे को छोटी सी भी चीज पूछनी होती है, दे हैव देयर टीम्स, तो हम 2 जने हैं, हमारे पास 6 इंटर्न्स हैं, जो हम 8 लोग की टीम है जो हम काम कर रहे हैं। तो अगर मेरे को इंस्टाग्राम में रील्स के बारे में कुछ पूछना है, मेरे इंटर्न्स को जानना है कि अच्छा ये करे या ना करे, तो प्रॉब्ली विनीता के पास 10 लोग हैं जो वो सिर्फ रील्स पे काम करें, तो हमें बहुत हेल्प मिलती है इस सेंस में, क्योंकि दे आर ऑब्वियसली वर्किंग एट अ मच लार्जर स्केल, और दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हम जिस जर्नी से निकल रहे हैं वो उसको क्रॉस कर चुके हैं। अनुपम सर के केस में तो मल्टीपल टाइम्स क्रॉस कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मिलता है। एंड प्रॉब्ली जो हम गलतियां करने वाले हैं ये करेंगे, वो उससे हमें रोक लेंगे, रोका है अभी भी 2 महीने 3 महीने के टाइम में भी, मैं कहूँगा बहुत हेल्प है डेफिनेटली। और अगर आप लोग ने हमारी पिच देखी होगी तो मतलब हमें बहुत ज्यादा बैकलैश आया था, सबने बोला था कि आपने अश्नील सर का डील क्यों नहीं लिया, और वो ज्यादा पैसे दे रहे थे, ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे थे, तो उसका लॉजिक यही था कि ठीक है पैसे ज्यादा दे रहे थे, पर पैसे के अलावा भी कुछ होता है। एंड आई थिंक जो हमने 25 लाख रुपया कम लिया, वो हम अनुपम और विनीता मैम से निकाल लेंगे, नॉट इन कैश बट इन काइंड। One question from my side, sir. जी, How to convert any business idea into reality? It seems like silly question, but it may be. नहीं सिली क्वेश्चन नहीं है, सब ऐसी तो क्वेश्चन होते हैं। डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ आइडिया यू हैव। अगर आपका एक प्रोडक्ट आइडिया है और आप वो बना सकते हो, एक प्रोटोटाइप कर सकते हो, तो डेफिनेटली प्रोटोटाइप करो एंड गो टू योर कस्टमर्स एंड सी इफ दे वांट टू यूज दैट। बट मतलब जैसे अगर आप कह रहे हो कि मेरे को एक सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, तो यू कैन नॉट प्रोटोटाइप दैट, देन यू हैव टू बिल्ड इट ऑन पेपर। बट आइडिया की वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है। आइडिया, देखो आइडिया सबको आते हैं, और एन आइडिया इज नथिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। आइडिया सबके पास होते हैं, सबको लगता है वो ये कर लेते हैं और ये हो जाएगा, तो वो ये कर लेते हैं और ये हो जाएगा के बीच का जो जर्नी है ना, उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। ये करेंगे तो ये कैसे होएगा। अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वो कस्टमर क्यों खरीदेगा, वो जानना जरूरी है। अगर इफ यू हैव एन आंसर कि ये कस्टमर क्यों खरीदेगा एंड यू आर सैटिस्फाइड विद इट, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड। और अगर हाँ मतलब इफ इट इज समथिंग दैट कैन बी प्रोटोटाइप,
प्रोडक्ट है या जैसे कम्युनिटी का भी कहा था, तो कम्युनिटी है तो वो आप इनिशियली खुद कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, तो एक पायलट प्रोजेक्ट से तो लॉन्च करना ही। अभी आप लोग बहुत यंग हो सारे, आपके पास बहुत टाइम है, करो, करने से होता है। मतलब स्टार्ट डूइंग, कुछ नहीं होगा, गलत होगा क्या होगा, खराब हो जाएगा, गलत होगा। डोंट इन्वेस्ट टू मच इन इट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन्वेस्ट योर टाइम एंड देखो, अच्छा हुआ तो बिजनेस बन जाएगा, नहीं अच्छा हुआ तो एक्सपीरियंस मिलेगा। सर जैसे जो लोग अपने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनसे खुश नहीं है तो वो नए प्रोडक्ट को फिर भी ट्राई करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं और हमें उन लोगों को अपनी तरफ लेके आना है तो वो कैसे लेके आएंगे? मुश्किल है, वही कोशिश कर रहे हैं, आसान नहीं है, मुश्किल है। बट हाँ, इस पे आपका प्रोडक्ट आइडिया आता है कि आप उस आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम, अगेन वही वापस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या। आप जो आपने बोला एग्जैक्टली वही बात है कि वो प्रोडक्ट क्यों स्विच कर। लोग आज से 25 साल पहले स्किन केयर के नाम पे पॉन्ड्स का क्रीम होती थी और निविया का वो ब्लू वाला डब्बा का कोल्ड क्रीम हो जाता था, एंड दैट वाज स्किन केयर फॉर एवरीबॉडी। और उसके बाद इंटरनेशनल ब्रांड्स आए, फिर लैक्मे आया, गार्नियर आया, और अब न्यू एज ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में, मामा बहुत अच्छा कर। तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यू हैव टू फाइंड योर स्पेस। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि बिल्ड एंड पीपल विल कम। अगर आपका प्रोडक्ट आपने अच्छा बनाया है, धीरे आएंगे पर आएंगे, अपने आप आएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट सच्ची में अच्छा है तो फोकस ऑन द प्रोडक्ट पार्ट एंड देन थोड़ा स्लो होता है, फंडिंग मिल जाएगी, थोड़ा तेज हो जाएगा, और अच्छा कर लोगे थोड़ा और तेज हो जाएगा, बट द प्रोडक्ट हैज टू बी देयर। अगर किसी को स्विच करवाना है, हमने बहुत लोग को सनस्क्रीन स्विच करवाया फ्रॉम द सनस्क्रीन दे वर यूजिंग, तो उसका एक ही रीजन है कि हमारा सनस्क्रीन लगाओ तो वो गायब हो जाता है, कोई वाइट कास्ट नहीं है, इरिटेशन नहीं होती, इतना स्मूथ टेक्सचर है कि आपको 5 मिनट बाद खुद ही नहीं रियलाइज होता कि आपने सनस्क्रीन लगाया हो। तो प्रोडक्ट है, कस्टमर अपने आप आए। सर पिच से पहले तो सभी डिसीजंस आप और मैम ही लेते थे, जैसे कि कुछ भी अगर आपको रील्स वगैरह या जो भी प्रोडक्ट पे, मार्केटिंग पे, पर सर पिच के बाद मतलब अब आपको किसी से पूछना पड़ रहा है कि ये करे या ना करे, मतलब एज इन सेंस कि आप काफी संभल के चल रहे हो हर एक चीज थोड़ा सा, तो उस चीज को कैसे लगे? लाइक अगर मैंने कंपनी बिल्डअप करी पूरी शुरू से लेके ऊपर तक, फिर देन समबडी कम जिसने अपना पैसा डाला हुआ, फिर वो बोलता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, तो वो चीज किस तरह से हैंडल हो पाती? क्योंकि आप अभी तक वो स्टेज आया नहीं कि हमें सुनना पड़े, अभी तो हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं और बहुत सारी चीजों पे अभी भी हम खुद काम कर रहे हैं। तो अगर आप IQ की कस्टमर केयर पे फोन करोगे तो 80% ऑफ द टाइम्स मेरे या कनिका फोन उठाएंगे अभी भी। तो ऐसा नहीं है। और इन्वेस्टर देखो, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू हैव। हमारे वी हैवंट रेज्ड द VC राउंड, हमारे इन्वेस्टर्स एंजल इन्वेस्टर्स हैं एंड दे हैव बीन डूइंग देयर बिजनेस। तो अभी तक तो बहुत पॉजिटिव रहा है द जर्नी सो फार, क्योंकि अगर हमें कुछ, एक तो हमें आज तक अभी तक कुछ नहीं बोला गया ऐसा कि आपको ये करना है, हमें बोला जाता है कि ये कर लो अच्छा होगा, और हमने जितनी चीजें इम्प्लीमेंट करी है इट हैज बीन वेरी वर्थवाइल फॉर अस। तो आई थिंक अभी वो प्रॉब्लम नहीं आया है, आएगा तो देखेंगे क्या होगा। तो सर ये सब चीजें कहाँ से सीखनी है? मतलब MVP, USP है, फिर ये ग्रॉस मार्जिन है, ये स्टार्टअप से रिलेटेड चीजें सीखे कहाँ से? मतलब गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब सब कुछ सिखाता है। हर एक चीज मेरे को जो भी ना मिले मैं उसको सब डायरेक्टली कुछ मिलेगा यूट्यूब पे, गूगल सर्च करो, हर एक चीज मिलती है। लोग बॉम्ब बना रहे हैं यार, मैं पॉइंट टू कंपनी पॉइंट बनाना जाके शुरू की। मतलब वो करूँ? हाँ, नहीं है, टेक माय ईमेल एड्रेस, मेल, आई विल सेंड यू द यूट्यूब लिंक। ओके ठीक है। सर, हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप इन कोर्स IQ?
email us. और COSIQ में इंटर्नशिप करनी है तो हम लोग बहुत मैं पर्सनली भी और बिकॉज मैं कंपनी लीड कर रहा हूँ, हम लोग हैरी पॉटर फैंस हैं, हमारे 4 टीम्स हैं हॉगवर्ट्स के हाउस के नाम पे, तो अगर कोई हैरी पॉटर फैन है तो जरूर अप्लाई करना। एंड वी आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स इन ऑल एरियाज, तो डेफिनेटली आई ask your management or your college to share my email ID with all of you and email करिए, we'll be happy to have you on board. Hello. हाँ जी, Good evening, sir. Sir, I good am evening. Yogendra IT. Hi, Sir, I have Yogendra. some of my questions. And my first question is, what was your primary objective to pitch into the Shark Tank India? To get guidance or to get investment? गाइडेंस, सबसे पहले तो गाइडेंस चाहिए था। वो आपने हमारे डिसीजन पे भी देखा होगा, पैसे तो चाहिए पर जो शार्क्स थे ऑल ऑफ देम 7 ऑफ देम, इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो अभी हमारी जैसी कंपनी के लिए तो अनमोल है। इट इज मच मोर देन एनी, देखिए फंडिंग रेज कर लेंगे, काम करेंगे, बट जो पर्सनल गाइडेंस जो हमें जैसे विनीता और अनुपम से मिल रही है, दैट इज प्राइसलेस फॉर अस। And sir, what is your current revenue model and where are you expecting it in upcoming years? How to create as a big brand in all over India, in all over the world? रेवेन्यू मॉडल तो मैं इस कॉल पे कैसे डिस्कस करूंगा, बहुत वास्ट हो गया, बट हाँ अभी हम ऑनलाइन ओनली है, अभी हम ऑफलाइन मार्केट में नहीं है, एंड प्रॉब्ली इस साल तक ऑनलाइन ओनली रहेंगे। सॉरी, वी आर सेलिंग ऑन Amazon, Nykaa, Purple, Flipkart, all the major marketplaces, and we are also selling on our website. So we want to grow our website. We'll be online at least for this year, and uske baad let's see if we are able to move in the offline market and internationally as well. But abhi focus online pe. Okay, sir. Thank you. सर शार्क टैंक पे आपको अश्नीर सर कितना फ्रैंकली बताते हैं, अगर उनको कुछ बुरा लग रहा है तो बुरा बता देते, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बता देते, तो आपको वो कैसा लगा? देखो मैं ना दिल्ली से हूँ और अश्नीर सर भी दिल्ली से हैं, तो एक तो वो जो बोलते हैं ना भाषा, वो मेरे को पर्सनली मेरे को बहुत गलत नहीं लगती। आई नो वो बहुत गलत बोल जाते हैं, बट मेरे को नहीं लगता। मैं उनसे बहुत, मतलब मैं तो बहुत अच्छा रिलेट कर पाता हूँ, एंड आई एब्सोल्युटली लव हिम। मतलब मेरे मेरे लिए तो बहुत सही है वो, क्योंकि वो सीधा मुंह पे बोलते हैं नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, और ये आइडिया गलत है तो गलत है, जो उनको पर्सनल फील हो रहा है। अगर आप चला सकते हो तो चलाओ ना, हाथ तो रोक नहीं रहे वो। बट हाँ हमारी भी उनसे डिस्कशन हुई थी, उन्होंने ऑफर भी करा था हमें। we chose Vinita and Anupam because Vinita has experience in our category, हमें वो हेल्प चाहिए थी। बट हाँ मतलब एब्सोल्युटली वो तो बहुत सही करते हैं, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव नहीं सुन सकता तो मेरे को एंटरप्रेन्योर होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं हम लोग अपना प्रोडक्ट, अगर हमारी डिस्कशन होती है COSIQ के बारे में, या किसी भी बंदे से कोई मेरे को कहता है हाँ हमने प्रोडक्ट यूज करा आपका, तो हम ये नहीं पूछते कि आपको क्या अच्छा लगा। मेरा पहला क्वेश्चन होता कि एक चीज बताओ जो आपको बेकार लगी हमारे प्रोडक्ट, क्या खराब लगा, पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, खुशबू नहीं थी, खुशबू थी, स्किन पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दैट इज हाउ वी कैन इम्प्रूव। अच्छी अच्छी बातें तो ठीक है, सुन लेंगे, खुश हो जाएंगे, पर प्रोडक्ट और ब्रांड और सारी चीजें तभी इम्प्रूव करेंगे जब हमें कोई बताएगा यहाँ गलत जा। तो आई थिंक अश्नीर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। हालांकि हमें भी उन्होंने सस्ता चाइनीज ब्रांड बोला था, सस्ता चाइनीज ब्रांड टीवी ब्रांड का नाम लग रहा है ऐसा बोला था हमारे ब्रांड के नाम को, बट ठीक है,
इनपुट है, उसके बाद तो हमारी चॉइस है ना, हम उसको सुने या ना सुने। लेकिन सर को अगर कोई आइडल मान के शुरुआती बिजनेस में अगर ऐसा बिहेवियर रखे तो उसको मुश्किल आ सकती नहीं आ सकती? देखो, आपका अगर यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। आपको नेगेटिव फीडबैक आएगा, हमेशा आएगा। अगर आप उससे डर जाओगे या उससे घबराओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। क्रिटिसिज्म लेना बहुत जरूरी है और लेना आना चाहिए एक कॉन्फिडेंस। आप देखोगे, अगर आपको शार्क टैंक पे याद होगा, रोहित थे सिप लाइन के, जिन्होंने वो ग्लास का मास्क बनाया था। उन्होंने देखिए ना कितना अच्छा क्रिटिसिज्म दिया। उनके इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, आई डोंट नो प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है नहीं है, कितना चलेगा, बट वो देखो ना उनके इंस्टाग्राम पे जाके वो कितना अच्छा क्रिटिसिज्म ले रहे हैं and he is using that. बट सर अपने प्रोडक्ट पे भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना तो एक टाइम के बाद टॉक्सिक हो जाएगा ना, क्योंकि फिर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट तो चलेगा ही चलेगा। आप रोहित की बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं करूंगा, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, इसलिए इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। बट एज इन अगर कैसे कुछ भी लें, जैसे अगर मैंने कोई बुक लिखी, मैं रोहित के वो सिपलाइन और रोहित, सॉरी गलत टॉपिक है, मैंने बात मेरे प्रोडक्ट का बताओ। मैं मेरे प्रोडक्ट को जितना गाली देनी है दो, मैं सुनूंगा, और 100 गाली दोगे मैं सारी नोट करूंगा और देखूंगा कि कौन सी वैलिड है और किस पे मैं काम कर सकता हूँ, और बाकी इग्नोर करूंगा। सर आपने ये प्रोडक्ट, हाँ जी बोलिए। आपने ये प्रोडक्ट बनाया कैसे था? मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए तो सेटअप चाहिए, तो उसकी नॉलेज कैसे आई थी? तो कनिका वाज वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो काफी बड़े नाम के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा आइडिया भी वहीं से आया, क्योंकि हमने देखा बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, बट देयर प्रोडक्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क। वो उनका फोकस मार्केटिंग पे है इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट। तो उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जहाँ कनिका काम कर रही थी, देयर आल्सो आवर पार्टनर्स नाउ। हमने अपना प्रोडक्ट डेवलप करा और वहां से हमारी शुरू। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने स्किन का प्रोडक्ट डेवलप किया, अब आपने अपने बेसिस पे ट्रायल कर लिया उसको, लेकिन जब कोई कस्टमर उसको यूज करता है और उसको कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो कंपनी पे या प्रोडक्ट पे केस करने की कोशिश करता है, तो उससे कैसे डील किया जाए? कोई भी प्रोडक्ट है, हम उसके हर एक के ड्रॉबैक्स नहीं देख सकते। देखिए, प्रोडक्ट की ना, हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ रेगुलेटरी होती है। हमारे प्रोडक्ट्स में FDA रेगुलेटरी बॉडीज है जो हमारे प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और उसके एडिशनली हम लोग थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवाते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स वैलिडेट होते हैं कि दे आर सेफ टू यूज। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे हमारा सनस्क्रीन है, उसका SPF 50 SPF 30 का जो क्लेम है वो थर्ड पार्टी टेस्टेड होता है। तो वो लैब्स है इंडिया में जो टेस्ट करती है और आपको सर्टिफिकेशन देती है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड के लिए सर्टिफिकेशन होता है, आपका वेट्स एंड मेजर्स में रजिस्ट्रेशन होता है, इंडियन FDA में रजिस्टर होता है। तो बहुत सारी रेगुलेटरी चीजें हैं जो आपको करनी जरूरी भी होती है। और उसके अलावा हम अपनी चॉइस से भी टेस्टिंग करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, जो लैब टेस्टेड होते हैं फॉर ऑल दीज क्लेम्स। उसके बाद अगर देखिए, हम लोग स्किन केयर बना रहे हैं, तो दुनिया में सिर्फ एक ही स्किन केयर है जो हर बंदे के लिए काम करेगी, और वो है आपका पानी, H2O। अगर हम पैक करके बेचे और कहीं ये अपनी स्किन पे लगाओ, क्योंकि उसके बाद कुछ भी डालोगे तो वो कहीं ना कहीं 1000 में एक लाख में एक करोड़ में एक बंदे की स्किन पे रिएक्ट कर सकते। तो वी आर कवर्ड ऑन दैट पार्ट, बिकॉज हमारे प्रॉपर डिस्क्लेमर्स हैं वेबसाइट पे, प्रोडक्ट पे। और स्किन केयर में एक बहुत अच्छी चीज होती है पैच टेस्ट, जो हम अपने हर प्रोडक्ट पे लिखते हैं और हर कस्टमर को रिकमेंड करते हैं। तो पैच टेस्ट इज बेसिकली, आप बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अपने कान के पीछे या हाथ पे या सेंसिटिव एरिया पे लगाते हो बहुत थोड़ा सा, एंड यू रियलाइज, आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके ऊपर रिएक्ट तो नहीं करेगा।
सो दिस इज वेरी सिमिलर जो हमारे मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है. अगर आपको RSCCA दिया जाता है तो वो थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं एंड दे टेस्ट कि अगर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा देन दे गिव यू दैट फुल डोज ऑफ मेडिकेशन. तो स्किन केयर में भी पैच टेस्ट होता है जो हम बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं हमारे हर प्रोडक्ट के लिए और यूज. तो वी ट्राई टू मिटिगेट ऑन दैट पार्ट. और उसके बाद अभी तक कोई क्लेम आया नहीं. आएगा तो we have that backing by law also and from our theories also we will be able to tackle those. Okay, thank you. Sir, how do we price our products so that we cover all our research cost and the profits and all that kind of stuff? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है. ये मेरे सिलेबस से बाहर है. प्राइसिंग दो चीजों से होती है. एक अपनी कॉस्ट से, आपको प्रोडक्ट क्या कॉस्ट कर रहा है एंड विल यू बी एबल टू मेक मनी. और दूसरा मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर किस प्राइसिंग पे. तो हाउ डू यू वांट टू प्लेस योर प्रोडक्ट. पहले तो आपका कॉम्पिटिटर कौन है. आप मास मार्केट में जा रहे हो, आप मिड सेगमेंट में जा रहे हो, आप अल्ट्रा हाई एंड लग्जरी चीज बना रहे हो, तो आपकी टारगेट मार्केट कौन है, उसमें प्राइस कंपटीशन कहाँ है. और अगर आप उसमें अग्रेसिवली प्राइस करते हो तो आपके कॉस्ट से वो प्राइस जस्टिफाई होता है या नहीं. So it is a combination of those things. But it is a very, very tough topic, pricing. और I think startup के लिए pricing should not be that big an issue. आप जितना aggressively, if you are starting something, जितना aggressively कर सकते हो करो. वो अपने आप course correction होता है. It is not something you should worry a lot initially. अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, हमने अपना सनस्क्रीन स्टार्ट करा था बहुत ज्यादा प्राइसिंग से, हमने उसको कम करा और हम आगे और कम करने वाले हैं बिकॉज दो रीजन. एक मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी शुरू में, तो मैंने गलत प्राइसिंग करी थी. और दूसरा वी आर एबल टू रीच दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे और अब हम 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें कॉस्टिंग हमारा कम आ जाता. तो we'll be further reducing our pricing. और वो अपने आप कोर्स करेक्शन होता है. बट इनिशियली यस, मार्केट में क्या प्राइसिंग है और आपका कॉस्टिंग क्या है, उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड. सर मेरा अभी क्वेश्चन समवट रिलेटेड टू प्राइसिंग ही है कि मतलब आप लोगों ने नीश को कैसे सेलेक्ट करा कि मतलब इस टियर 2 में बेच ज्यादा बिकेगा सनस्क्रीन, टियर 3 में मतलब किस टाइप के लोगों को बेचना है, किस तरह की नीश होने वाली है, ये कैसे आपने पता करा. ये तो एसेंशियल क्वेश्चन है आपके बिजनेस का. आप बिजनेस सोच रहे हो, आप आइडिया सोच रहे हो, तो ये तो उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि आप किसको टारगेट करें. आपकी टारगेट मार्केट इज प्रोबब्ली द फर्स्ट one of the first 3 questions you are asking when you are making a product. कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप किस प्राइस बैंड या किस एरिया, लोकेशन, जेंडर, एज को टारगेट कर रहे हो. तो यू हैव टू गेट दैट राइट. क्योंकि अगर मैं नया फोन लॉन्च कर रहा हूँ तो आई हैव टू टारगेट 16 to 24 year old people. तो मैं 40 प्लस को टारगेट नहीं कर सकता इफ आई एम लॉन्चिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी. या जैसे आप कम्युनिटी बना रहे हैं तो यू हैव टू टारगेट पीपल जो आपकी रीच में हो और जो लोअर हैंगिंग फ्रूट हो. देखिए अगर मैं सनस्क्रीन बना रहा हूँ, मेरा सनस्क्रीन एक 70 साल का इंसान लगा सकता है और एक 13 साल का बच्चा भी लगा सकता है. बट वो मेरे लिए इजियर मार्केट नहीं है. मेरी टारगेट मार्केट इज 18 to 30 year old women, क्योंकि वो सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो ये डिफरेंस है टोटल एक्सेसिबल मार्केट, जिसको टैम कहते हैं, और टारगेट मार्केट. तो मेरी टोटल एक्सेसिबल मार्केट इज एवरीबॉडी अबव 13 years ऑफ. बट मेरी टारगेट मार्केट इज जो मेरा प्रोडक्ट बहुत ही इजीली खरीद लेंगे, जिसमें मेरे को कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कम समझाना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट बेचने.
सर स्टार्ट में बिजनेस में खुद के फंडिंग ज्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए या फिर आपको बाहर से फाउंडर भी देखना चाहिए? डिपेंड करता है आप कैसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और मेरे हिसाब से जब तक खुद की फंडिंग, इफ यू हैव दोज रिसोर्सेज, जब तक खुद का फंडिंग से काम कर सकते हो बिल्कुल करो। बाहर का फंडिंग इज व्हेन यू वांट टू स्केल अप या यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट व्हिच कैन नॉट वर्क विदाउट आउटसाइड। सर किसी स्टार्टअप में स्टार्टिंग में क्वालिटी मैटर करती है या प्राइसिंग मैटर करती है? कि जैसे कि मार्केट में हम सेम एक क्वालिटी हाई दे रहे हैं किसी से, प्राइस लेकिन हाई है, या एक प्राइस लो है और क्वालिटी बराबर की है, वो मैटर करता है? ये तो डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, पर एज जनरल ये तो आप किस तरफ प्लेस करना चाह रहे हो, बट एज जनरल प्रोडक्ट मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि प्राइसिंग तो आप कम ले आओगे या बढ़ा दोगे, बट प्रोडक्ट क्वालिटी तो, अगर आपने कोक पी, आज कोक 50 रुपए की भी होती तो आप कहते कि अच्छा स्वाद है पर महंगी है, हम नहीं पियेंगे, और वो जिस दिन 20 रुपए की हो जाएगी आप पीना शुरू कर दोगे। बट अगर आपने कोक पी और वो कोक स्वाद ही नहीं है, तो वो चाहे 10 रुपए की मिलेगी, बाद में 5 रुपए की मिले, आप नहीं पियोगे। तो प्रोडक्ट मैटर्स अ लॉट मोर देन प्राइसिंग। सर किसी भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, चाहे एक ऐप है या कोई भी हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, कोई यूजेबल प्रोडक्ट है, तो उसका बेसिक रखना चाहिए या उसमें पहले से स्टार्टिंग से फीचर्स देके चलने चाहिए किसी भी तरह? जैसे आपकी स्किन क्रीम लगा लो कि हमें एक बेसिक सनस्क्रीन, बिल्कुल बेसिक रखो मेरे हिसाब से, मतलब ये सारे जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे पर्सनल व्यूज है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही दुनिया चलती है। मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरे कहने के विपरीत चल के भी सक्सेसफुल हो सकते हो, तो दिस इज जस्ट एडवाइस, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे हिसाब से जितना बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो उतना अच्छा, दैट इज व्हाट एक MVP होता है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ, फीचर्स बाद में ऐड करो। सर मुझे इस बात पे इसलिए डाउट था क्योंकि अगर हम बेसिक लॉन्च करते हैं और लोग बेसिक को पसंद नहीं करते, बेसिक ही मतलब अगले सबको चाहिए कि फीचर ज्यादा हो, उसके अंदर की चीजें ज्यादा हो या कुछ भी, तो अगर हम पहली बार में बेसिक बना के डिमोटिवेट हो गए तो फिर आगे बनाने की मोटिवेशन नहीं। आपका प्रोडक्ट का जो USP है, जो स्टैंडिंग पॉइंट है, जो डिफरेंशिएटर है, जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट से अलग है, सिर्फ एक फीचर, 2 फीचर, उनसे स्टार्ट करो ना। अगर आपने 25 फीचर डाल दिए तो आप पहले तो वो 25 फीचर्स को सक्सेसफुली सर्विस नहीं कर पाओगे, आपका कुछ ना कुछ ब्रेक करेगा या कुछ अप टू द मार्क नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। हम लोग जहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेरे पास प्रॉब्ली मैं 500 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ विद रेडी फॉर्मूलाज, आई हैव एक्सेस टू दैट। बट हमने स्टार्ट करा था 3 प्रोडक्ट 8 SKUs से, तो मेरे पास कंट्रोल है, क्योंकि मेरी अभी बैंडविड्थ उतनी है, तो मैं उतना ही कंट्रोल कर सकता हूँ, और उसमें मैं बेस्ट दे रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, एक चीज को बेस्ट पे ले जाओ, ताकि आपका कस्टमर आपको पहचानेगा उससे, और उसके बाद बाकी चीजें तो बिक जाएंगी अपने। आई थिंक मैंने काफी सारे सबके क्वेश्चंस आंसर कर दिए, और होपफुली कुछ थोड़ा सा सीखने को मिला होगा आपको। Thank you, sir, for answering all our questions. तो काफी कुछ सीखने को मिला आज आपके आंसर से, जो कि मन में काफी सारे डाउट रहते थे। Hello, सर मेरा hello एक sir. How to deal with self-doubt? आप लोग की एज थोड़ी है सेल्फ डाउट की यार, किस बात का सेल्फ डाउट है?
मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि मार्केट में चलेगा नहीं, तो मतलब खुद पर एक सेल्फ डाउट आता है कि हम गलत तो नहीं है। तो बनाओ ना, प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट में उतरो, मार्केट को जवाब देने दो ना, खुद को जवाब क्यों दे? आप लोग यंग हो, आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग के पास दिमाग है, एनर्जी है, किस बात का सेल्फ डाउट? ओके सर, थैंक यू। सर आपकी एक इंटर्न से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है? जैसे अगर मैं अभी एक वेब डेवलपर हूँ, काइंड ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, अगर मैं अभी कोर्सआईक्यू में अप्लाई करता हूँ, तो क्या आप मुझे एज एन इंटर्न लेना चाहोगे, या फिर यू वांट कि एक्सपर्ट ही हो, या फिर लाइक व्हाट आर आप योर मेरे को पहले अपना एक्सपेक्टेशंस? नाम बताओ। अंकित सिंह। अंकित? यस सर। ठीक है अंकित, आप तो आ रहे हो मेरी टीम में डेफिनेटली, ठीक है। बाकी लोग के लिए मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं, मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता, विल बी हैप्पी टू हैव यू। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी, हमको एनर्जी चाहिए, हमें अप्रोच ठीक चाहिए काम करने की, काम करने का मन होना चाहिए, और कुछ सीखने का और कुछ हमें सिखाने का भी मन होना चाहिए। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, या आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे होने चाहिए, या बहुत सारी इंटर्नशिप करी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तब भी आप इस चीज को लाइक मैं ले नहीं पाया। कैन आई पुट इट ऑन लिंक्डइन? लाइक मैंने आज एक मीटिंग करा एंड यू सेड दिस टू मी दैट आई एम इन योर टीम इन द कोर्स ऑफ मीटिंग। बिल्कुल, मेरे को ऐड करो लिंक्डइन पे अंगद। आई ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू। लाइक ठीक है, अभी एक्सेप्ट कर। तो मैं लिंक्डइन पे पुट कर दूं ना कि मैं आई कोर्सआईक्यू? बिल्कुल बिल्कुल। So anybody else having some doubts? I think a lot of questions have been answered by Mr. Angad Talwar. So we are in the end of session now. Yes, sir. Albert Einstein once said, learn from yesterday, live for today. But the most important thing is not to stop questioning. Asking a question and clearing a doubt is the best way to learn something new. So thank you so much everyone for asking questions. I would like to thank Angad sir for his, I must convey my heartfelt appreciation for your ideas and beautiful explanation of everything. So now it gives me an immense pleasure to invite Mr. Shradha Singh sir to extend his words of thanks. So, sir, please. Thank you very much. Good afternoon, Angad sir. Wonderful experience of having you with us. And after a long time, I have seen someone connecting so good with our kids and guiding them the way they were looking for. Because it was not just a success story of yours, rather, I believe mostly the students were able to connect themselves to the concept, and they were, coming up with the questions which were very much relevant to their ideas or thoughts or plans of future. So, Angad Talwar sir, I heartfully thank you very much for being with us. Thanks a lot. Thanks for hosting me. Very happy to be here. It was really a wonderful session, and we'll look forward for more. For sure. We'll definitely call you someday to our campus so that we can all meet you. I would. Thank you very much, Angad sir. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. So in the end, I request all the participants I'll wait for one their camera so that we can have a group photograph. Yes, sir. I was about to. Because sometimes you will never know the value of a moment until it's become a memory. So please, everyone, keep your cameras on for capturing this beautiful moment. Okay. Thank you, everyone. Ankit, जो आपका background है ना, Ankit, can you hear me? Yes, sir. उसके ऊपर I will लिखना. Okay, sir. Sure. Okay.
मेरे I को तो will do अभी भी something लाइक समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या इमोशन मेरे दिमाग में भी प्रोड्यूस होना चाहिए. So this is the first time it is happening that we are on a program, doing program, and a student got an internship offer straight away from the owner itself. Very good. Good work, Ankit. Thank you, sir. Thank you. ठीक है. Thank you so much, Angad ji. And Thank we you. hope to see you soon Thank and you. Bye bye. future Thank you. and thank you so Thank much. you very much, sir. Thank you, Sabdul ji. Thank you, sir.